Welcome to VLearn's online class. As in the previous session, we have already discussed about the single linked list, means the creation of single linked list and how we can display the different elements of linked list by an example or by a program. Now, in today's session, we will do the different types of operations that can be performed on a linked list. The different type of operations performed on a linked list are: insert a new item. You can insert a new item or new element at the starting of the linked list, at the end of the linked list, or inside the list. Means you can add any element at the beginning, at the end, or at any middle position in the linked list. And another operation can be deletion of an item from the linked list. You can delete a particular item, or you can delete an item from the beginning or from the end of the linked list. Next is searching for an item in the linked list. Means if you want to search a particular item from the linked list, then it is also possible in the case of linked list. Now we will do different kind of operations that can be performed on a linked list. First is insertion at the head or insertion at the beginning of the linked list. Now, these are the different nodes available in the linked list. If you want to insert a node at the beginning of linked list, for example, if you want to insert node A, this node at the beginning of linked list, then what you have to do, you just have to adjust the pointer address to the address of the first node. For example, if you insert this node at the beginning of the linked list, then you have to insert the previous first node's address in the address part of the new node to link these nodes or to link the new node with the previous linked list. As you can see in the example, जैसे कि A आपने नोड इंसर्ट करा, A में आपने डेटा आइटम यूजर से एक्सेप्ट करवाई और A की एड्रेस वाले पार्ट में आपने किस चीज का एड्रेस डाला, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस था. मींस ये हमारी प्रीवियस लिंक लिस्ट है, इसे फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसमें हम डालेंगे उसका एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आप ए के एड्रेस पार्ट में डालेंगे. इट मींस यू हैव टू लिंक द वैल्यू इन द न्यू आइटम, दैट इज ओल्ड हेड पीटीआर, एंड द न्यू वैल्यू ऑफ हेड पीटीआर इज न्यू पीटीआर. नाउ द हेड पॉइंटर, फर्स्टली हेड पॉइंटर हमारा हेड नोड हमारा दिस ये वाला था. अब नाउ after insertion of the new node, the head node is changed, that is the new node. In the same way, you can insert value at the end. At the end अगर आप value insert करते हैं और at the end अगर आप new node insert करते हैं, then हमारे first, second, third and so on, ये हमारी linked list है previously, आपको ये node at the end of the linked list add करना है. तो आप क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि सिंगल लिंक लिस्ट में जो भी एंड नोड है, द एंड नोड्स एड्रेस पार्ट विल कंटेन नल वैल्यू बिकॉज देयर इज नो फर्दर नोड्स which address can be saved in the address part of this node. So the address part of the last node will contain null value. Means अगर आप insert करना चाहते हैं at the end of the linked list, जैसे कि हम इस नोड को at the end of the linked list लेकर आए, अब इस नोड का मीन्स न्यू नोड का जो भी एड्रेस है वो हमने कहां पे इंसर्ट कर दिया, प्रीवियस वाले नोड के, जबकि प्रीवियस वाला नोड पहले क्या स्टोर कर रहा था, नल. बट अब प्रीवियस वाले नोड में क्या है, इससे पहले वाले नोड में न्यू नोड का एड्रेस है, न्यू नोड के एड्रेस वाले पार्ट में आपने वैल्यू इंसर्ट करी, दैट इज नल, क्योंकि ये एंड नोड है हमारा. Next is insert inside the list. अब suppose you want to insert a new node at a particular position. For example, if you want to insert a node at third position, means at this position, after first and second node, this is third position. If you want to insert a node at third position, then what you have to do? आपको दो nodes में adjustment करनी होगी, means the previous node and the next node. Now देखिए जो सेकंड नोड है यहाँ पे वो किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, थर्ड नोड का, मीन्स प्रीवियस थर्ड नोड का. अगर हम यहाँ पे कोई न्यू नोड इंसर्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, इट मीन्स जो भी हमारा न्यू नोड है दिस वन, इसके एड्रेस वाले पार्ट में किसका एड्रेस आएगा,
जो पहले थर्ड पोजीशन पे था, ये एड्रेस आप कहां से रिट्रीव कर सकते हैं? प्रीवियस वाले नोड से, क्योंकि प्रीवियस वाले नोड के एड्रेस वाले पार्ट में इस वाले नोड का एड्रेस था जो फोर्थ पोजीशन पे आ गया है। तो आप सेकंड वाले नोड से फोर्थ वाले का एड्रेस रिट्रीव करके उसे स्टोर करेंगे न्यू नोड के एड्रेस वाले पार्ट पे, एंड सेकंड वाले नोड के एड्रेस वाले पार्ट में हम न्यू नोड का एड्रेस, मींस इन दिस वे यू हैव टू लिंक द न्यू नोड विद टू नोड, दैट इज प्रीवियस नोड एंड द नेक्स्ट नोड. This is the insertion operation that you can perform on the linked list. Next is deletion operation. Means अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं इसमें से वैल्यू, you can delete the value from the beginning of the linked list, from the end of the linked list, from the middle of the linked list according to your requirement. अब अगर हमें डिलीट करनी है head item, that is the starting value from the linked list, then what you have to do, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्टार्ट नोड है, दैट इज फर्स्ट नोड. इट मींस आपको जो फर्स्ट वाला जो पॉइंटर है दैट इज द फर्स्ट नोड को पॉइंट करे, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था. फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे हमने वैल्यू लिया, स्टार्ट लिया एंड पीटीआर, 3 पॉइंटर्स लिए, जिसमें से जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, दैट इज आपने फर्स्ट नोड यहां पे क्रिएट करा, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करवाई, वैल्यू वाले पॉइंटर में हमने उसका एड्रेस एलोकेट करा, पीटीआर में हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला एंड स्टार्ट में हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला. पीटीआर को आपने आगे आगे मूव करा बट स्टार्ट स्टिल पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. मींस अब अगर आप फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो स्टार्ट वाले पॉइंटर को आपको मूव करना है फर्स्ट नोड टू नेक्स्ट नोड. इट मीन्स आपका फर्स्ट नोड आप पहले प्रीवियसली सेव करेंगे कहीं पे, हेड नोड को आप सेव करेंगे, देन स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, देन फ्री फंक्शन का आप यूज करेंगे मेमोरी को फ्री करने के लिए. दिस इज हाउ द डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एंड इफ यू वांट टू डिलीट द फर्स्ट नोड फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट इज delete the tail item, means if you want to delete the element from the end of the linked list, then how you can do it? End of the linked list अगर आपने डिलीट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. आपको कैसे पता चलेगा कि अब लिंक्ड लिस्ट का एंड हो गया है? आप थ्रू द एड्रेस पार्ट ऑफ द नोड, मींस अगर आपके नोड के एड्रेस पार्ट में नल है, इट मींस दिस इज द एंड ऑफ योर लिंक्ड लिस्ट. इट मींस आप चेक करेंगे, आपने लूप चलाया कि जब तक पीटीआर और जो भी आप पॉइंटर ले रहे हैं पॉइंटर के एड्रेस पार्ट में नल नहीं मिल जाता आपका, तब तक लूप चलेगा. जब आपका लूप ब्रेक हुआ मींस आप एक स्टेप पहले ही रुक जाएंगे. देन अब आपको क्या करना है, इस नोड के मींस सेकेंड लास्ट नोड के एड्रेस वाले पार्ट को, एड्रेस वाले पार्ट में क्या है आपका प्रीवियस वाला नोड, इट मींस आप इसके एड्रेस वाले पार्ट पे जाएंगे और उसको डिलीट करेंगे. इट मींस न्यू वैल्यू ऑफ टेल पीटीआर आपने चेंज करा, पहले आपका टेल पीटीआर लास्ट नोड था, अब न्यू वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड लास्ट नोड, मींस लिंक वैल्यू ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लिस्ट लास्ट आइटम, एंड द न्यू लिंक वैल्यू ऑफ द न्यू लास्ट आइटम इज इक्वल टू नल. पहले इसमें क्या था, नेक्स्ट नोड का एड्रेस था, इट मींस लास्ट नोड का, बट अब लास्ट नोड क्योंकि चेंज हो चुका है तो इसमें अब एड्रेस पार्ट में क्या कंटेन करेगा, ये नल वैल्यू. नाउ if you want to delete a particular item from inside the linked list, means अगर आप कोई भी particular item delete करना चाहते हैं, second item, third item, fourth item, means according to the position, then first of all you have to input the position from the user. Then after inputting the position you can see, अब अगर आपको सेकेंड नोड डिलीट करना है इट मीन्स आपको एडजस्टमेंट करनी है फर्स्ट नोड की थर्ड नोड के साथ. अब सेकेंड नोड के एड्रेस वाले पार्ट में एड्रेस है थर्ड नोड का, जो कि आपको सेव करना है फर्स्ट वाले नोड में. फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ थर्ड नोड. बट व्हाट हैपन इफ यू डिलीट द सेकेंड नोड, you have to create a link between first and third node directly. Means if you want to delete a node from the middle of the linked list, then you have to create a link between first and third node by inserting the address part of the
deleted node means second node to the first node address part. That is new link value of the item located before the deleted one. This one equals to the link value of the deleted item. जो इसकी link value है उसको आपने first node में insert किया, इट मींस यहां से डायरेक्टली अब लिंक हो गया first node and third node के बीच में. Next is searching for an item. If you want to search for a particular item in a linked list, then you can do it by linear search or by binary search. We will do the searching of an item by linear search simply means first of all you have to take input from the user which value you want to search. For example, you want to search the value A. Then you have to start the search sequentially from the starting node to the end node. कब तक सर्च करेंगे? जब तक आपको A की वैल्यू इक्वल नहीं मिल जाती या फिर आपकी लिंक लिस्ट में के एड्रेस वाले पार्ट में नल नहीं आ जाता, तब तक आप सर्चिंग ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे एंड टिल द एंड आप सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर आपको आइटम सर्च हो जाती है तो आप कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे, और अगर कंपैरिजन में आपकी डेटा आइटम सिमिलर होती है देन आप सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सर्चिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी. इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. जैसे हमने लिंक लिस्ट पहले क्रिएट करा हुआ है, लिंक लिस्ट हमने क्रिएट करा जिसमें हमने सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाया, 3 पॉइंटर्स लिया आपने, दैट इज वैल्यू जो कि स्टोर करेगा जो भी आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है उसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए, स्टार्ट जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, एंड पीटीआर हमेशा आगे मूव करने के लिए. फर्स्ट नोड के लिए आपने यूजर को मैसेज दिया एंटर वैल्यू, वैल्यू में आपने यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करवाई, स्कैनफ में आपने यूजर से वैल्यू के डेटा वाले पार्ट में वैल्यू एंटर करवाई. वैल्यू में फर्स्ट एड्रेस है, सपोज फर्स्ट एड्रेस इज 99, देन इस एड्रेस को आपने पीटीआर पे भी स्टोर करा एंड स्टार्ट में फर्स्ट नोड के एड्रेस पे भी स्टोर किया. नेक्स्ट इज कब तक हम वैल्यू डलवाएंगे? जब तक यूजर वैल्यू के डेटा वाले पार्ट में 0 नहीं इंसर्ट कर देता, मीन्स टर्मिनेशन कंडीशन हम कुछ भी ले सकते हैं. अगेन हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर वैल्यू. To enter the value, again you have to allocate the memory, then again you have to take the input from the user in the data part of the value. Now, next part is to make the pointer adjustment. अब PTR क्या है हमारा? previous node का. अब आपने new node का एड्रेस एलोकेट करा सपोज 111, तो वैल्यू में जो एड्रेस था प्रीवियसली दैट इज 99 वो ओवरराइट हो गया 111 एड्रेस से. बट अब आपको इस 111 एड्रेस को प्रीवियस वाली नोड के साथ लिंक करना है. प्रीवियस नोड क्या था? 99 के एड्रेस वाले पार्ट में हम क्या डालेंगे? वैल्यू 99 को हमने पॉइंट करा पीटीआर के थ्रू, बिकॉज पीटीआर ऑल्सो कंटेन 99. पीटीआर के मींस 99 वाला जो एड्रेस है उसके एड्रेस पार्ट में आपने 111 स्टोर किया, दैट इज न्यू एड्रेस, एंड पीटीआर को हमने आगे मूव कर दिया 111 पे. नेक्स्ट टाइम पीटीआर विल पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड. इन द सेम वे आपका रिपीट होता रहेगा जब तक आप डेटा वाले पार्ट में 0 वैल्यू नहीं एंटर करवा देते. नेक्स्ट इज पीटीआर के एड्रेस पे मीन्स जब आप लूप से बाहर आ जाएंगे इट मीन्स दिस इज द लास्ट नोड, एंड अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमने डिस्प्ले कॉल फंक्शन को कॉल किया. अब डिस्प्ले फंक्शन में क्या है? आप पीटीआर को फर्स्ट नोड पे लेंगे गए, जब तक उसके एड्रेस वाले पार्ट में नल नहीं मिल जाएगा तब तक चलेगा, एंड पीटीआर की डेटा पार्ट को आपने प्रिंट करा एंड पीटीआर को पर आगे आगे मूव करा. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन वी विल डू इज सर्चिंग ऑपरेशन. Then we create a function with name search. If you want to search a value in the linked list, first of all you have to take the value from the user. For this we take a variable say n. Now we will give a message to a user that is enter value you want to search, then to take input from the user we use scanf function. Now what you have to do now? You have to do or you have to perform the searching operation from the beginning of the linked list. अब beginning पे जाने के लिए हमने क्या किया? ptr को start पे ले गए. start means the first address or the address of the first node. कब तक चलेगा? जब तक ptr के
एड्रेस वाले पार्ट में नल नहीं मिल जाएगा तब तक चलेगा। अब सर्चिंग में आप क्या चेक करेंगे, इफ पीटीआर के डेटा वाले पार्ट को, अगर पीटीआर का डेटा वाला पार्ट अगर आपको इक्वल मिलता है एन के, एन मीन्स द वैल्यू यू वांट टू सर्च फ्रॉम द लिंक लिस्ट, कभी भी पीटीआर का डेटा वाला पार्ट आपको इक्वल टू एन मिलता है, देन आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे व्हाट। और प्रिंट करने की बजाय हम सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं दैट इज फाउंड। फाउंड को हमने 0 से इनिशियलाइज करा। अगर आपको वैल्यू इक्वल मिलेगी तो आप फाउंड में प्लस प्लस करेंगे। इट मीन्स जितनी बारी भी आपको वैल्यू मिलेगी उतनी बारी फाउंड की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। देन पीटीआर अगर पीटीआर के न्यू नोड पे जाएगा, दैट इज पीटीआर के एड्रेस पे, मीन्स नेक्स्ट नोड पे मूव करेगा, क्योंकि आपने लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन दिया, मीन्स लूप कब से स्टार्ट होगा, कंडीशन दी कब तक चलेगा, एंड इंक्रीमेंट हर बार नेक्स्ट नोड में मूव करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप हमारा है चेक करना। स्टार्टिंग में हमने इनिशियलाइज करा कि फाउंड की वैल्यू है 0। फाउंड की वैल्यू में इंक्रीमेंट कब होगा, व्हेन द पीटीआर डेटा पार्ट is equal to n, n means the value you want to search. Then अगर आपका कभी पीटीआर का डेटा पार्ट n के इक्वल होता है, then what you have to do, the found will be incremented by 1, and if the value of found is equal to 0, then it means there is no match, or it means the value is not exist in the linked list. Then we will display a message, value not found. And if the value of found is incremented, then we will display a message, value is present %d times। %d में आप फाउंड की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। जितनी बारी भी फाउंड में इंक्रीमेंट हुआ इतनी बारी आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दिस इज द सर्चिंग ऑपरेशन। अगेन देख लीजिए, हमने वैल्यू एंटर करवाई यूजर से बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। देन पीटीआर को फर्स्ट नोड पे लेके गए, जब तक इसके एड्रेस में नल नहीं मिला तब तक चलेगा। अगर पीटीआर का डेटा इक्वल होता है एन के तो फाउंड में प्लस प्लस होगा और पीटीआर हमेशा आगे आगे मूव करेगा। और अगर फाउंड की वैल्यू इक्वल टू 0 रहती है, इट मीन्स आपकी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। बट अगर फाउंड में इंक्रीमेंट होता है तो इट मीन्स आपकी वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट है, जितनी बारी फाउंड में इंक्रीमेंट हुआ। देन यू कैन ऑल्सो प्रिंट द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। नाउ वी विल कॉल द सर्च function। We have to declare that function. We have entered 6 values, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have to enter the value whichever you want to search. For example, we enter 4. The value is present 1 times. If any value is present more than 1 times, if you want to enter, if you want to search 1, then 1 is present 3 times. This is how we can perform the searching operation in the linked list. These are the operations that you can perform in the linked list. That is insertion, deletion, searching, sorting, and many other functions that you can perform in the linked list. For insertion and deletion operation, you have to do, or you have to make the adjustment of the pointers from one node to another node. Now,
Next is double linked list, or you can say doubly linked list. What is the use of doubly linked list? As you can see, in case of single linked list, you can move in one direction only, that is from first node to second node, second to third, third to fourth, and so on, because the first node contains the address of second node, the second node contains the address of third node, the third one contains the address of fourth, and so on. But what happens if you want to move in reverse order? Means if you want to move in from last node to second last node, second last to third last, then what will happen? Is it possible in case of single linked list? No, because the node will contain the address of the next node only. There is no provision to move in the reverse order, because no node contains the address of its previous node. So the drawback of single linked list is you can traverse in only one direction, because each node has the address of the next node only. Okay, then what will happen if you want to move in both the directions? That is, means if you want to move from first to last and last to first node, then we will use double linked list. What is double linked list? In double linked list, the node contain three parts. Three parts, which are the three parts that node contains? The node contains the three parts, that is one data part, one address of the previous node, and one address of the next node. For example, this is a node. It contains three parts, one node, one for the address of the previous node, next will contain the data part, and next will contain the address of the next node. Means by using double linked list, the user can traverse in both the direction. Means if you want to move in the previous direction, for example, if we have previous address node, then you can move in reverse direction and you can move forward direction also. Now we will implement the double linked list with the help of a program. For double linked list, you have to take two address nodes, or you can say two parts for address, one for previous and one for next. It means it contains total two parts, one for the previous node address, one for data, and next for the next node address. Now printf enter value, if you want to take input from the user, then you have to give message to the user that enter value. To take input from the user, you have to allocate the memory for it. We allocate the memory in the value pointer, then you take the value from the user in the data part of the value. Now in case of double linked list, the previous address or the first node will contain null. Means अगर आपका फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड के पहले तो कोई नोड नहीं है, इट मीन्स उसका कोई प्रीवियस नोड नहीं है. इट मीन्स जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस एड्रेस है वो क्या कंटेन करेगा? नल. बाकी आपका सेम रहेगा. इट मीन्स आप पॉइंट ptr को भी वैल्यू पे लेके गए एंड स्टार्ट को भी, मीन्स फर्स्ट नोड को भी हम वैल्यू पे लेके गए. कंडीशन हमने सिमिलर दी, दैट इज वैल्यू का डेटा पार्ट जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक आप यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे. मेमोरी एलोकेट करी आपने, स्कैनएफ करवाया. अब वैल्यू के डेटा वाले पार्ट में आपने यूजर से वैल्यू एंटर करवाई. अब आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट. पीटीआर के नेक्स्ट वाले पार्ट मीन्स प्रीवियस वाले नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने वैल्यू का एड्रेस डाला. इट मीन्स द न्यू नोड एड्रेस दैट इज 111 एंड वैल्यू, इट मीन्स 111 के
प्रीवियस वाले पार्ट में आप क्या डालेंगे, पीटीआर. पीटीआर मीन्स 99. अभी पीटीआर में क्या है, फर्स्टली 99 है फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम पीटीआर आगे मूव करेगा, दैट इज पीटीआर वैल्यू पर मूव करा, पीटीआर की वैल्यू में 111 हुआ. इट मीन्स आपको दो नोड्स के दो पॉइंटर्स की एडजस्टमेंट करनी है, वन फॉर द प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट नोड. बट इन केस ऑफ डबल लिंक्ड लिस्ट, द previous address of the first node will contain null and the next address of the last node will contain null value. You can see the at the end of the linked list, the next part will contain null. If you want to display the value, then PTR को आप start पे लेके गए. Now you can display the value from the beginning to the end or from the end to the beginning. PTR को start पे लेके गए आप, जब तक PTR के एड्रेस में नल नहीं मिल जाएगा तब तक चलेगा. PTR के थ्रू आपने एड्रेस पार्ट को पॉइंट करा. दिस इज डिस्प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग. आप बिगिनिंग से एंड में डिस्प्ले करवा रहे हैं. इफ यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, देन आप पीटीआर को कब तक चलाएंगे, जब तक पीटीआर के प्रीवियस वाले पार्ट में नल नहीं मिल जाता. अभी हमने यहां पे लिया पीटीआर के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि आप बैक से, इट मींस लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ मूव करें, देन यू हैव टू क्रिएट अ लूप विच विल रन फ्रॉम द लास्ट नोड टू द beginning node or to the first node, and you have to create a loop or you have to run the loop while the PTR's previous part not equals to null. This is how you can create double linked list. You enter the value and the values will be displayed. Means single linked list means the difference between single linked list and double linked list is that, means in single linked list you can traverse in only one direction, but in double linked list you can traverse in both the directions. Now next is circular linked list. One useful data structure is circular linked list. As you see, single linked list and double linked list, if we put the first node address, means as you see in the single linked list, this one, the last node address part contains null value, but if instead of null value you enter the address of the first node in the address of the last node, means अगर आप last node के address वाले पार्ट में first वाले node का address insert कर देंगे तो it will become the circular linked list, single circular. and अगर आप double circular की बात करते हैं तो it means double circular में आपको दो pointers की adjustment करनी पड़ेगी, that is the last node's address part will contain the address of the first node and first node के previous वाले part में आप क्या कर रखेंगे, लास्ट नोड का एड्रेस. मीन्स आप इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अपनी लिंक लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज ओनली स्मॉल चेंज इन सिंगल लिंक लिस्ट. लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड हैज नल वैल्यू, इट रिप्रेजेंट द लास्ट नोड, बट हियर लिंक पार्ट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड रिप्रेजेंट द लिंक लिस्ट इन सर्कुलर वे. मीन्स आप सर्कुलर वे में अपनी लिंक लिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस वे. दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट डायनेमिक memory allocation function. You can implement the linked list with the help of dynamic memory allocation functions, self-referential structures, pointers and all. This is all for today's session. Thank you.